So without wasting any time, I request Professor D.D. Sharma, sir. Thank you, sir. Thank you very much, and very happy to see you in this traditional attire. प्रोफेसर डी.डी. शर्मा साहब का मैं पहले परिचय देना पसंद करूंगा। सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर की तरफ से कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स है ज्योग्राफी के, राजस्थान के विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं, उनको आपने उद्बोधित करने का हमें अवसर, हमें आपको सुनने का उन्हें अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। मैं सर को बुलाने से पहले सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगा। प्रोफेसर डी.डी. शर्मा इज अ प्रोफेसर इन ज्योग्राफी इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला. He has been a very brilliant student in his student career. He has awarded gold medal in MPhil in geography and recipient of number of academic awards during the student time. He started his teaching career from Government College Rampur, Bushar, district Shimla, and he remained there for 7 years and then shifted to Department of Geography, Himachal Pradesh University Shimla, and he is continuing there till now. He has supervised 11 students for PhD and 31 students for MPhil. He has published 2 books. One is A Forest Economy and Environment, and the another is Environment and Development Issues of Microhydal Projects, and edited 1 book on Managing Our Resources, Perspectives and Plannings. He has published more than 50 articles in various journals of national and international repute. He has attended more than 100 national and international conferences in India and abroad. He is a member of various professional bodies. He remained the president of Association of Punjab Geographers during 2014 to 16 and vice president of the National Association of Geographers India for many times. Professor Sharma has a bigger role in inking Memorandum of Understanding for academic collaboration between Himachal Pradesh University and Bath Spa University of England. He has been the recipient of Global Scholarship for visiting UK in 2014 and 2015. He had the opportunity to visit Bath Spa University and universities of Highlands and Islands, Perth, Scotland, UK. He has been working on a joint collaborative research project on disaster risk reduction with College of Liberal Arts, BSU, and Delhi School of Economics, University of Delhi. A very warm welcome, sir. Board is yours. Thank you, Dr. Soni, for such a generous introduction. I was just thinking that when we are short of time, I think we should not really go by this. I think this would have been enough that I'm D.D. Sharma and I'm just one of you, because all of you are my fellow beings, and as I'm told that all of you are from the geography discipline of different colleges of Rajasthan, and some of you are also from other states. And so I think we should have taken it like that I'm also one of you. And this is just a matter of chance that I'm on the other side of table, or you can say on the other side of the line today, because in this online time, naturally, we are interacting from a distance. And this is just a musical chair. Maybe on some other occasion that I shall be amongst the listeners and some of you will be the speaker. And as I'm supposed to speak on disaster management, the current scenario, so I'll be going straight away to my presentation as time is less. So I was... सर हिंदी का भी इस्तेमाल करिएगा जितना हो सके। देखिए, भाषाओं से एक्चुअली हम बहुत डरने लगे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं दिखाऊंगा अंग्रेजी में पर बोलूंगा फिर हिंदी। As you can see, yes, sir. This is my topic, disaster management in India. करंट सिनारियो की अगर बात कर रहा हूँ, और मैंने ये जो पहला स्लाइड आपके समक्ष लाया है, इसमें कुछ चीजें बड़े जानबूझकर मैंने डाली है कि ताकि आपको एक बोध हो सके कि जब हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो किस तरह का एक सिनारियो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में उतर आता है।
यहाँ पर एक जो आप देख पा रहे हैं, कैन यू सी द स्क्रीन डॉक्टर सोनी, इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस सर। ओके। देखिए, जब हम इनकी बात करते हैं तो मैं आपको कुछ और पिक्चर दिखा रहा हूँ कि जब भी हम डिजास्टर के बारे में सोचते हैं और आपदा के बारे में सोचते हैं, तो जो व्यक्ति जिस तरह की उससे गुजरा होता है या कुछ चीजें हमारे ध्यान में होती है, तो कुछ डिफरेंट तरह के जो पिक्चर्स है, डिफरेंट तरह के जो सीन्स है हमारे दिमाग में आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड में जब हम डिजास्टर की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों को मैंने एक साथ दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे फ्लड भी है, यहाँ पे लैंडस्लाइड भी है, यहाँ पे ड्राउट भी है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी है, साइक्लोन भी है, और जो ऊपर आप पिक्चर देख रहे हैं कि जो अमेरिका में त्रासदी हुई थी, जिसको कि हम 9/11 के नाम से जानते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, उसको भी दिखाने की कोशिश की है। ये सारे डिफरेंट तरह के, और इसमें कुछ भारत की पिक्चर भी है। अगर आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इसको, कि हिमालयन सुनामी के नाम से इसको बताया गया था, कि जो केदारनाथ बद्रीनाथ में जो एक फ्लैश फ्लड आया था। और इसी तरह से ये पिक्चर जो रोड एक्सीडेंट का है, ये हिमाचल का है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है जब भी हम आपदा की बात करें तो हमारे दिमाग में, हमारे सामने केवल लैंडस्लाइड या केवल अर्थक्वेक या केवल फ्लड की बात आए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम कई बार सोचते नहीं हैं कि वो वहाँ पे इस तरह का डिजास्टर हो सकता है। मैं आपको कुछ और पिक्चर्स दिखाऊंगा तो शायद आपको ध्यान में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब हम डिजास्टर की बात करते हैं, ये सारी की सारी, जो पहले वाले में तो कुछ पिक्चर बाहर की भी थी, लेकिन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये सारी पिक्चर भारत की है, क्योंकि मैं ज्यादा भारत पे बोलने वाला हूँ। यहाँ पे अगर इस पिक्चर को आप देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ लोगों को बोध होगा कि ये पिक्चर कहाँ की है। और ये मैंने इसलिए साइन ऑफ इंटेरोगेशन यहाँ पर लगाया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, की जब हम सोचते हैं कि जब हम आपदा की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि आपदा का मतलब केवल बाढ़ आना या केवल भूकंप आना होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में इस तरह की घटना हो सकती है। तो इसलिए जब आपदा को हमें व्यापक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, मैंने कई बार इसको दिखाया, क्योंकि इतना वक्त नहीं है और इतना आमने सामने हो तो मैं पूछता जब भी। लेकिन मैंने इस पिक्चर को दिखाया कई बार किसी और लेक्चर में, तो बहुत लोगों ने बोला कि ये शायद मुंबई का जो ताज होटल है, ये उसका पिक्चर है। वो भी हो सकता था, लेकिन इसकी कुछ वजह है कि मैं इस पिक्चर को जो दिखा रहा हूँ, ये आमरी हॉस्पिटल कोलकाता का पिक्चर है। दिसंबर 11 की बात थी, वहां पर आग लगी। और आप आज भी खंगाल कर देख लीजिए, दिसंबर मतलब गूगल कर लीजिए आमरी हॉस्पिटल फायर, जो देखेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स मिलेगी। और उसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो खबर आई कि कुछ में 88 लोगों के मारे जाने की बात की, कुछ में 91 लोगों के मारे जाने की बात की। लेकिन एक बड़ा जो कह सकते हैं एक दुखद सत्य है, जो कि किसी भी अखबार में नहीं आया, वो मुझे मालूम है। वो मुझे भी इसलिए मालूम है कि एक मेरे मित्र है जो कि मूलतः कोलकाता के रहने वाले हैं, और वो डॉक्टर है, डॉक्टर सुजॉय मजूमदार। ये प्राइवेट हॉस्पिटल था और वो एक सप्ताह में 2 बार उनका डे इस हॉस्पिटल में जाने पर होता था। और उन्होंने एक हिडन स्टोरी मेरे को बताई कि इस हॉस्पिटल में एक इलीगल पीडियाट्रिक वार्ड था, जहाँ पे छोटे बच्चों को, बिल्कुल जो कह सकते हैं अभी न्यूली बॉर्न बेबीज है, उनके लिए वार्ड था, जो कि अदरवाइज ये ऑथोराइज नहीं था इस तरह की। उसके लिए जो ये नेटल केयर वाला जो है, वो जच्चा बच्चा की दृष्टि से ये ऑथोराइज नहीं था, लेकिन फिर भी वो चला रहे थे। और उसमें जब आग लगी तो उस समय कम से कम 15 या 16 न्यूली बॉर्न बेबीज भी थे। उसकी किसी भी अखबार में रिपोर्टिंग नहीं हुई। ऑब्वियसली जब बाकी लोगों की जान गई तो वो जो 15-16 न्यूली बॉर्न बेबीज थे, वो भी उनकी भी डेथ हुई। और कुछ लोग जो बाहर निकलना चाह रहे थे, उनको गार्ड ने बाहर गेट पे रोका कि पहले पेमेंट करके आओ, और वो फिर कभी नहीं आए। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जरूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी भूकंप और उसकी चीजों को ही देखें। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ऐसी घटनाएं भी, और ये क्यों नहीं बताया, एक चीज और मैं बता रहा हूं, मैं उस विषय पे वापस आऊंगा, ये क्यों नहीं बताया गया।
केवल इसलिए नहीं कि शायद अपनी बचाना चाहते थे, लेकिन एक और वजह भी है कि अपने देश के अंदर, मैं एक अंग्रेजी में कोट कर रहा हूँ जितेंद्र जी, मुझे लगता है कि बाकी लोग इतना बड़ा मुश्किल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वी हैव टेंडेंसी टू क्रिएट डिजास्टर टू काउंटर द डिजास्टर। हम इसलिए भी छुपाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा है कि हम कई बार किसी आपदा के रिएक्शन में एक और आपदा को जन्म देते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी 1 मिनट पे उस पर भी बात करूंगा। और दूसरी तरफ जो पिक्चर देख रहे हैं जहां काफी लोग इकट्ठे हैं, ये भी इत्तेफाक से जो है 2011 का पिक्चर है, पश्चिम बंगाल का पिक्चर है, डायमंड हार्बर का। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी ये जो लोग इकट्ठे हैं और डेड बॉडीज पड़ी है। ये हाल के 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी हुज ट्रेजेडी इसको बोलते हैं, जिसमें कि जहरीली शराब पीने से 171 लोगों की जान गई थी। अभी पिछले साल महाराष्ट्र में या अभी कुछ और जगह पे भी ऐसी घटनाएं हुई, उसमें 50 लोग, महाराष्ट्र में 50 या 55 लोगों की जान गई। लेकिन जो ये 171 लोगों की केवल एक घटना में इतने लोगों का मारा जाना, ये शायद मतलब पिछले 10 वर्षों में जो सामने आया वो बहुत बड़ी घटना थी। बहुत से परिवार ऐसे थे जिसमें कोई पुरुष नहीं रहा, केवल महिलाएं बच गई क्योंकि उन्होंने शराब नहीं पी। तो क्या इजंट इट डिजास्टर, क्या ये आपदा नहीं है? नीचे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये एक पिक्चर तो जो है महाराष्ट्र के थाने का है, जहां पे बिल्डिंग कोलैप्स होने से लगभग 78 लोगों की जान चली गई। और इस तरह की घटनाएं तो हाल के वर्षों में बहुत हुई है, गाजियाबाद में हुई, महाराष्ट्र में कई घटनाएं हुई, दूसरी जगह भी हुई। तो ये भी इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और उसका गिर जाना, कोलैप्स होना, वो भी आपदा। और ये हम सभी भली भांति परिचित है इससे। ये जो घटना हुई थी पिछले वर्ष 14 फरवरी के दिन, शायद उस दिन जो है जब इतने लोगों की जान गई थी इकट्ठे, जब वो एक पुलवामा में इस तरह का जो अटैक हुआ था, जिसमें कि 4 या 5 बसेस जो थी हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ले जाने वाली, उसमें लगभग 45 लोगों की जान गई थी। इसी तरह से ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उड़ीसा का ढेन कनाल का है, जहां पे एक अनमैन्ड क्रॉसिंग में जो है जब ये गाड़ी निकल रही थी, जब ये कार निकलने की कोशिश कर रही थी, तो सामने से आती हुई ट्रेन से टकरा गई, जिसमें कि 8 लोगों की वहीं पर जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी देर में हम निकल जाएंगे, पता नहीं कौन सा गोल्ड मेडल मिल जाएगा। और कई बार इस तरह के निकलने की कोशिश करते हैं कि लोग, आपने देखा होगा कि जहां पे कई जगह पे रस्से से रोड को रोका जाता है कि भाई ट्रेन गुजर रही है, तो बाइक वाले, स्कूटर वाले नीचे से निकल के वो सोचते हैं कि हम पहले निकल जाएंगे तो गोल्ड मेडल हमें मिलेगा। इस चीज को भी हम देखेंगे। तो कि क्या ये डिजास्टर नहीं है? और ये जो यहाँ वाला पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं, ये सहरसा बिहार का पिक्चर है। सहरसा बिहार में जो राजरानी एक्सप्रेस आ रही थी, और ये लगभग श्रावण मास की जब कांवड़ यात्रा चल रही होती है, उस टाइम की घटना है। और ये ट्रेन के नीचे 37 लोगों की जान चली गई, जिसमें अधिकांश महिलाएं थी। और उसके पश्चात जब ये एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, तो एक यूथ का मॉब आ गया। बहुत सारे जो जवान लड़के थे, ऐसे जो हुलीगन वाली बात थी, जो ऐसे इकट्ठे हुए और उन्होंने पूरी ट्रेन को आग लगा दी, और जो रेलवे स्टेशन था उसको भी फूंक डाला। लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान वहां पर हुआ। और मैंने जो थोड़ी देर पहले बात की थी कि शायद वो इसलिए नहीं बताया गया था, आमरी हॉस्पिटल का इंसिडेंट, कि वी हैव टेंडेंसी ऑफ क्रिएटिंग डिजास्टर टू काउंटर द डिजास्टर। यहाँ पे जो हुआ, 37 लोगों की जान गई, दुखद था। लेकिन उसके पश्चात जो हुआ, पूरी ट्रेन को जला दिया, स्टेशन को जला दिया, लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। ये 2014 की घटना है, अप्रैल की। तो क्या उससे वो 37 लोग जिंदा हो गए क्या? तो ये कहने का मतलब ये है कि ये भी एक डिजास्टर है। और नीचे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये हिमाचल का पिक्चर है। ब्यास में जो है, ये भी करीब 6 साल पहले की घटना है, जब वहाँ के कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है हैदराबाद के, वो हिमाचल के दौरे पे थे और वो चले गए पानी के बीच में, और अचानक
पीछे से जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के फ्लड गेट्स थे उसको खोल दिया, और ये इसमें 25 जवान जाने जो है वो चली गई। और इसी तरह से आप और देख रहे हैं कि अभी भी कुछ इस तरह की फायर की घटनाएं हुई है पिछले वर्ष जो है, जिसमें भी कई इस तरह की मौतें सामने आई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो डिजास्टर है, हम अभी कुछ ही दिनों पहले जो है दशहरा खत्म हुआ, दशहरे में हम सब जानते हैं कि रावण के जो है उसको दहन करते हैं जिसके 10 सिर थे, लेकिन जो डिजास्टर है इसके असंख्य सर है। हमें पता भी नहीं है कि कौन सा सिर नया आ गया है। और इस वजह से जो है, हालांकि इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे भारत पे फोकस करना है, लेकिन एक चीज ये भी आई थी कि जब डिजास्टर की बात हुई थी तो ये 90 से जो 99 का दशक था उसको यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन घोषित किया था। लेकिन उस समय बात आई कि डिजास्टर को डिफाइन जो है कंक्रीट वे में, डिजास्टर को कैसे बोले, इस तरह से होगा। तो किसी ने बोला कि अगर 100 लोगों की जान जाती है तो उसको डिजास्टर कहना चाहिए। तो किसी ने बोला कि अगर 99 मरेंगे तो क्या आप एक और को मरने के लिए इंतजार करोगे तब डिक्लेयर होगा। फिर किसी ने बोला मरने का रहने दो, तो 100 अगर घायल हो जाए तो फिर भी वही बात आती है कि हम 100 या 99 या उसके आसपास मरने घायल होने की बात डिजास्टर नहीं है। अगर किसी परिवार में केवल एक व्यक्ति, पुरुष या महिला, अगर वही मेन जो है ब्रेड अर्नर है, उसको कुछ हो जाता है तो वो फैमिली के लिए तो वही डिजास्टर है। उसमें 100 और 99 या 101 के उसमें नहीं रहना है हमें, उसके लिए वही डिजास्टर हो जाता है। और इसलिए फिर जब एग्री किया गया, डेफिनेशन जो फाइनली यूनाइटेड नेशन ने भाई, उसमें क्या है, उसमें संख्या की कोई बात नहीं की। जैसे आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, कि समाज का एक बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी डिसरप्शन होती है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड ह्यूमन मटीरियल और एनवायरमेंटल लॉसेज। इसका सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले मानव क्षति की बात की गई, फिर मटेरियल जो आपका बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, या कोई भी और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात की गई, फिर एनवायरमेंटल लॉस की भी बात की गई क्योंकि वो भी डिजास्टर के रूप में कई बार सामने आता है, और उसमें which exceed the ability of affected society, क्योंकि जो हमारी एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि जापान में हर वर्ष बहुत सारे भूकंप आते हैं, लेकिन बहुत कमोबेशी वो न्यूज में या उसमें ध्यान में आता है। लेकिन हैटी में भूकंप आया तो वहां बहुत ही डिसरप्शन हो गया था। या अभी रिसेंटली जो है लेटेस्ट तुर्की में आया हुआ है, उससे बहुत क्षति वहां पर हुई है। तो इसलिए हम डिजास्टर में कि विच एक्सीड द एबिलिटी ऑफ अफेक्टेड सोसाइटी। अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर जाता है, गड्ढे में भी गिर जाता है और खुद आ जाए, तो उसको चोट तो लग सकती है, लेकिन उसको हम डिजास्टर नहीं कहेंगे। लेकिन अभी आज मैं न्यूज देख रहा था, आज ही शायद राजस्थान में ही किसी जगह पे कोई बच्चा गिर गया है बोरवेल में। ऐसी घटना होती रहती है, वो खुद नहीं आ रहा है, पूरा प्रशासनिक अमला उसमें लगा हुआ है। तो वो चीज हम जो है डिजास्टर के रूप में देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डिजास्टर स्टडी की हम बात क्यों करते हैं, हमें डिजास्टर स्टडी की जरूरत क्यों है। ये आप देखिए, ये हम क्योंकि भारत के ऊपर बात कर रहे हैं, डिजास्टर स्टडी जब वाई की बात करते हैं तो पूरी भारत माता पे नजर दौड़ाइए। भारत माता का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहां पे कोई डिजास्टर नहीं हुआ होगा। अगर आप उसके सर की बात करते हैं, उसके कंधों की बात करते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर से होते हुए अगर आप नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं, पूरे क्षेत्र में 2-3 तरह के डिजास्टर्स बहुत होते हैं। भूकंप बहुत आते हैं, काफी बड़े बड़े भूकंप आए हैं यहाँ पे। और दूसरा ये है कि क्योंकि ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है तो लैंडस्लाइड होता है, काफी जगह पे क्लाउड बस्ट होते हैं, फ्लैश फ्लड होता है, उस तरह की घटनाएं होती है। और अगर आप पूरा प्लेन एरिया जो इसका पूरा भारत माता का जो मुख्य शरीर है, कमोबेश हर जगह पे जो है बाढ़ की घटनाएं हुई है। लेकिन अगर आप इनकी भारत माता की टांगों की बात करते हैं तो खास करके जो हमारे यहाँ पे जो सुनामी आई थी, दोनों टांगों को बहुत भारी नुकसान इसको पहुंचा था। तो आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलेगी। और बीच बीच में जो ऐसे क्षेत्र थे जिसको कि पहले ये माना गया था कि यहाँ पर कभी भूकंप नहीं आ सकता, वहां पे भी भूकंप की घटनाएं हुई। और इस करके ये जितने भी स्पॉट है
मतलब आज की डेट में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा जिसको आप कह सकते हैं कि आपदा की दृष्टि से वो बिल्कुल फुल प्रूफ जो है, वो बिल्कुल वहां पे कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती है। मतलब आप अपने राज्य राजस्थान की बात देख लीजिए, जहाँ पे हम ये हमेशा ज्योग्राफी में पढ़ते पढ़ाते आए हैं कि वो ड्राई स्टेट है, वहां पे बारिश बहुत कम होती है, वहां पे भी फ्लड हो सकता है। इस बार पीछे कितनी घटनाएं फ्लड की हुई है, तो इसलिए फ्लड का टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल से लेना देना नहीं है। फ्लड में क्या मैटर करेगा, जो टोटल बारिश है वो कितने वेग से कितने समय में हो रही है, उससे सारा सिनारियो बदल जाता है। अब आप अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें, अपने देश का आधे से ज्यादा क्षेत्र ऐसा है जहां पे भूकंप की घटनाएं हो सकती है। कम से कम 12% ऐसा भूभाग है जिसपे फ्लड आते हैं। 8% ऐसा भूभाग है जहां पे साइक्लोन अक्सर आते हैं। और मतलब 3/4 के करीब ऐसा भूभाग है जो कि ड्राउट की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। और कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे नंबर ऑफ नेचुरल हैजर्ड्स जो है वो एक से ज्यादा, और जो हमारे टोटल यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स है उनको मिला के कम से कम 25 ऐसे हैं जो कि मल्टी हैजर्ड जहां पे है। मल्टी हैजर्ड की भाई वहां पे फ्लड भी आता है। अब आप राजस्थान की बात लीजिए, वहां फ्लड भी आ गया। अब ड्राउट तो है ही है। मैं हिमाचल की बात करता हूँ, यहाँ पे भूकंप की दृष्टि से हम जोन 4 और 5 में हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है, यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाता है, यहाँ पे फ्लैश फ्लड आ जाता है, और कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे एवलांचेस जो है वो आते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है, ये सारे के सारे आंकड़े केवल प्राकृतिक के लिए हो सकते हैं। व्हाट अबाउट मैन मेड डिजास्टर, वो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। और इसी वजह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब मैं भारत के बारे में, अपने देश के बारे में सोचता हूँ, आप इस अगर स्लाइड को देख पा रहे हैं तो इसमें 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी नेचुरल डिजास्टर, आप सब जानते हैं, और उसको फर्दर विंड रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड बोल सकते हैं। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो विंड रिलेटेड है, आजकल नाम बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। कुछ बोलेंगे कैटरीना, कुछ बोलेंगे सैंडी, कुछ बोलेंगे फेलिन, तो बड़े सुंदर से नाम लगते हैं कि भाई शायद कैटरीना की तरह सुंदर होगा। बट आप सभी जानते हैं कि ये कितना नुकसानदायक होता है। और वाटर रिलेटेड दोनों सिचुएशन है, ज्यादा हो जाए, आप अपने स्टेट के बारे में सोचिए, दोनों स्टेट में दोनों सिचुएशन में वो डिजास्टर का रूप धारण करता है। केवल इतना है कि पानी ज्यादा हो जाए तो वो जान ले लेता है, कम हो जाए तो शायद जान तुरंत नहीं जाती है ड्राउट में। आज की डेट में जो है थोड़ा सा उस बेस कह सकते हैं। लेकिन किसी कवि ने कहा था कि बोलो अति का भला ना बोलना, वो कहते हैं ना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। तो वो सिचुएशन इसमें देख सकते हैं। और मैन मेड के सिचुएशन में ये लिस्ट, तो पहले हम केवल युद्ध के बारे में सोचते थे, एक्सीडेंट के बारे में सोचते थे, और आज जिस त्रासदी को हम आप सब झेल रहे हैं वो भी एक मैन मेड में जो है। आप एक और चीज नीचे लिख लीजिए, कोविड-19। तो एक लिस्ट ये लगातार बढ़ती गई है। और तीसरी जो लिस्ट के नीचे, जो तीसरी कैटेगरी के नीचे मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया है, वो इसलिए कि आप सोच सके, जब हम अपने भारत के बारे में सोचते हैं तो एक और कैटेगरी हमारे यहाँ पे डिजास्टर की आती है। मैं उसको पॉलिसी डिजास्टर कहता हूँ। मैं इसलिए उसको पॉलिसी डिजास्टर कहता हूँ, अगर आप इतिहास में देखेंगे 1858 से लेकर 1857 में जो हमारी पहली आजादी की लड़ाई जो कहते हैं, जिसको कि म्यूटिनी या जो क्रांति है, उसके केवल 1 साल बाद 1858 से लेकर 2000 तक, लगभग 150 वर्षों तक आपदा का विषय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर रहा। बीच में कोई ध्यान नहीं आया। शायद उस समय एक ये थी कि हमारे यहाँ पे अकाल पड़ता था तो फसल नष्ट होती थी, लेकिन उसके बाद अब सोचिए, रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से क्या लेना देना है, एविएशन एक्सीडेंट हो रहा है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से क्या लेना देना है। हमारे यहाँ पे सुपर साइक्लोन आया उड़ीसा में, उसका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से क्या लेना देना था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। और आज भी जो हम कह सकते हैं कि हम किस तरह से चलते हैं कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद हम जागते हैं। और किसी शायर ने कहा था कि आज कौन जाए वहां धुआं देखने, कल अखबार में पढ़ लेंगे कहां आग लगी थी। वही पॉलिसी आज भी हमारी डिजास्टर के बारे में चलती है कि जब घटना घटती है हम उसके बाद जागते हैं। और
ये बहुत सारे कॉजल फैक्टर है डिजास्टर के। इसमें ज्योग्राफी के फैक्टर पे नहीं जाइए कि भूकंप कैसे आता है, प्लेट्स मूव कर गई, ये हो गया, या वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, लेकिन कॉमन फैक्टर आप देखेंगे उसमें आपको पॉवर्टी ध्यान में आएगा। क्योंकि पॉवर्टी किस लिए ध्यान में आएगा कि जब भी आप किसी डिजास्टर की बात करते हैं, कोई रिच व्यक्ति जो है डिजास्टर से बहुत कम प्रभावित होता है। आपने कभी सुना कि एनीबडी फ्रॉम द फैमिली ऑफ लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेम जी, मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला, साइरस मिस्त्री, उनके परिवार से क्या कोई डिजास्टर से अफेक्ट हुआ? और अभी इस कोरोना काल में जब भारत के अंदर 1 लाख हो गई है, जो रिच लोग थे वो फिर भी ज्यादातर लोग जो है, अमिताभ बच्चन जी फिर वापस कौन बनेगा करोड़पति में आ गए, तो वो ठीक ठाक है, लेकिन हम आपको जो है उसका नुकसान झेलना पड़ा है। तो इसलिए ये चीज जो है एक बहुत बड़ा कॉजल फैक्टर। और फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो बाकी चीजें हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड अर्बनाइजेशन, हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसमें बदलाव आना, और एक बहुत बड़ा जो चीज है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है एज ए ज्योग्राफी टीचर हमारे को इस चीज के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है हम इस वजह से जो है डिजास्टर में अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन का इशू हो जाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखिए 3 चीजें हैं, एक है हैजर्ड रिस्क और एक है वल्नरेबिलिटी। इसमें क्या है हैजर्ड रिस्क और वल्नरेबिलिटी? कि हैजर्ड अगर कहीं ऐसी जगह है जहां पे मनुष्य नहीं है, जिसको नॉन इक्विमेंट हम कई बार बोलते हैं, नॉन इक्विमेंट जिसमें पॉपुलेशन नहीं है, वहां पे भूकंप आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी तरह से अगर वल्नरेबिलिटी है लेकिन हैजर्ड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हैजर्ड और वल्नरेबिलिटी आपस में मिलते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है, जो कि डिजास्टर का स्वरूप ले लेता है। इसको मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। इस पिक्चर को देखिए, कहीं पे पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। राजस्थान वाले शायद इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मनाली आएंगे घूमने कभी तो आप देखेंगे बहुत जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा है, जरा सावधानी से चले। तो जो पत्थर गिर रहे हैं वो हैजर्ड है, लेकिन आप सीना तान के जा रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं होता जी, तो वो वल्नरेबिलिटी है। और ये पत्थर आके उस मनुष्य पे, किसी गाड़ी पे गिर जाता है, जैसा कि अभी इस साल भी हुआ यहाँ पे मनाली के कुल्लू के रास्ते जाते हुए, तो ये डिजास्टर का स्वरूप ले लेता है। लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो अगर संभव होए उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उस पत्थर को बांध दिया चेन से, या कई बार आप देखेंगे बहुत जगह पे सीमेंट का स्प्रे किया जाता है ताकि उस रॉक की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, जो उसको जो है जो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो क्रैक्स वगैरह अगर आ रहे हो तो उस पे आजकल जो है वो पहाड़ों में उसका सीमेंट स्प्रे कर देते हैं, सो दैट स्ट्रेंथ, एक वो भी प्रिवेंशन का तरीका है। या कई जगह पे आप आओगे पहाड़ों में, आप देखोगे कि कहीं पे अगर कोई ब्रिज बना है या कहीं पे अगर कोई टनल बनी है तो उसके आसपास की रॉक को नट बोल्ट भी लगा देते हैं वो, ताकि आपस में जोड़ के, वो एक प्रिवेंशन का तरीका है। फिर मिटिगेशन के लिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ टनल बना दी या कई जगह पे छत लगा दी। आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहां पे बहुत जगह पे वो सांझी छत उस जगह को बोलते हैं। जब आप अर्धकुंवारी से आगे जाते हैं तो वहां पे पूरा वो चादर लगा रखी है ताकि छोटे छोटे पत्थर आए तो वो कम से कम खतरा कम हो जाता है, वो मिटिगेशन है। और तीसरी चीज होती है प्रिपेयर्डनेस, कि हम कितना उसके लिए प्रिपेयर्ड है घटना के लिए। आपको पता है पत्थर गिर रहे हैं तो हमारे को वहां तेजी से निकल जाना है, वो एक प्रिपेयर्डनेस का तरीका है। ये मैं वैसे ही बात कर रहा हूं क्योंकि भारत के ऊपर हम बात करते हैं, एक बहुत ऐसी धारणा बन गई है कि जो व्यक्ति हमारे उधर से आते हैं, वेस्ट बंगाल से या बिहार झारखंड से, वो सारे बड़े एक्सपर्ट है आरसीसी की इसमें। ये मुझे भी इसलिए पता, पर मेरे एक मित्र है वो एनआईटी हमीरपुर में जो है सिविल इंजीनियरिंग के जो प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि बहुत जगह पे, जो मैंने बाद में देखा उसके बाद, कि अब कोई बड़ी स्ट्रक्चर, जो शुरू में मैंने पिक्चर दिखाई बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, हम कितने उसका जो है वो सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको किस तरह से मरोड़ रहे हैं। आप ये देखिए, ये 90 डिग्री पे, आज आप जाके देखिए कि जो आपका घर बन रहा है या किसी पड़ोसी का घर बन रहा है, कहीं और बन रहा है,
ज्यादातर केस में जो पिलर को बांधा जाता है उसको 90 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है, जो कि खतरनाक है। जब भी भूकंप आएगा वो ऐसे करके हिल के खुल जाएगा। इसको 135 डिग्री पे मुड़ा होना चाहिए ऐसे। तो ये एक छोटी सी चीज है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, लेकिन हमने जो शुरू में बताया लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन, ये जरूरी है सिस्मिक डिजाइन के लिए। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में 3 स्टेज होती है, प्री डिजास्टर, इमरजेंसी, पोस्ट डिजास्टर। लेकिन अपने देश में जो ये प्री डिजास्टर है इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी है, चाहे वो प्रिपेयरनेस प्लान की है, लैंड यूज जोनिंग की है, इसको बिल्कुल नहीं। मैंने जो आपको पहले भी बताया, जो उस पिक्चर में बता रहा था कि आज भी वही कि आज कौन जाए वहां धुआं देखने, का अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। वो जो घटना है वो हम इसलिए यहीं से शुरू होते हैं। वी आर वेरी गुड इन पोस्टमार्टम, हम बाद में पोस्टमार्टम करने में बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये तो जी एक घटना है, होती रहती है, ये तो डिजास्टर होगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फिर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, फिर दोबारा से हम प्रिपेयर होते हैं अगले डिजास्टर के लिए। भाई साइकिल है, जबकि ये साइकिल नहीं है। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का एम क्या है? पहली चीज देखिए आप, रिड्यूस, ब्रैकेट में लिखा है अवॉइड इफ पॉसिबल। ये इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि हर बार हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे, अभी आप देखते हैं कि चाहे भारत की स्थिति ले लो, चाहे अमेरिका में ले लो, अमेरिका में शायद कोरोना वहां पे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आप शायद अवॉइड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आ गया घटना, लेकिन आप रिड्यूस कर सकते हैं। अपने देश में भी वही है कि अवॉइड तो हम पॉसिबल नहीं, लेकिन रिड्यूस के लिए वो करें ना, और किसी भी और उसमें। और फिर दूसरी चीज है अश्योर प्रॉम्प्ट एंड एप्रोप्रिएट असिस्टेंस। ये बहुत जरूरी होता है कि हम प्रॉम्प्ट और एप्रोप्रिएट असिस्टेंस दे पाए। और तीसरी चीज होती है अचीव रैपिड एंड ड्यूरेबल रिकवरी, तभी जाके हम उसको कर पाएंगे। और प्रिपेयर्डनेस है, इसको मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं। यहां पे पहले मैं एक अंग्रेजी में कोट बोलूंगा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मोर वी स्वेट इन पीस, मोर वी स्वेट इन पीस, लेस वी ब्लीड इन वॉर। कहने का मतलब कि अगर हम शांति के समय ज्यादा पसीना बहाएंगे तो युद्ध के समय कम खून बहेगा। Some Banerjee is raising hand. Soni Saab, should I continue for another 5 minutes, or I don't know what she or he wants to ask. आपना माइक बंद है, आप पता नहीं आपका। Sorry sir, please continue. I will see. Okay. Please continue. तो ये चीज अपने देश में क्या है, हमेशा फोकस इस चीज पे रहा है। ज्योग्राफी के लोग हैं तो मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि अपने यहाँ पे 2 फसल चक्र प्रमुख रूप से रहे हैं, रबी और खरीफ, और अब तीसरा आ गया। मैं जायद की बात नहीं कर रहा हूं। बोला भैया काहे करे तकलीफ, रबी खरीफ के साथ मिलेगा रिलीफ। बिहार का इलेक्शन चल रहा है, आप जानते हैं कि रिलीफ इज अ बिग इशू। व्हाई देयर वाज अ चारा घोटाला, इट वाज जस्ट द रिजल्ट ऑफ द रिलीफ। तो ये आज भी जो है, मतलब बिहार एग्जाम्पल आ गया, बट हर एक जगह, मैं हिमाचल में स्टूडेंट लेके गया एक जगह, और क्योंकि वो काफी रिमोट है, आप आज भी देख सकते हो, एक मलाना विलेज है जिसको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड करके भी प्रचारित किया जाता है। हिमाचल में एक विलेज है कुल्लू जिला में, मलाना। तो वहां जब मैं गया, हम 33 लोग थे, 30 स्टूडेंट थे और 3 हम और लोग थे। जहां ठहरे थे उसने सबको 3-3 कंबल दिए। थोड़ा ठंडा था, अक्टूबर का महीना था, सबको 3-3 कंबल दिए कि नीचे ऊपर भी उसको ओढ़ सकते हैं, और पूछ रहा कि अगर और चाहिए होंगे ले लेना। बच्चे तो कंबल उठा के चले गए। मेरे ध्यान में आया, भाई इतने कंबल क्यों रखे हुए हैं इसने? आप में से किसी के पास, यहाँ लगभग 250 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, किसी के पास 100 कंबल है क्या? मेरे पास भी नहीं है। अब मेरे ध्यान में जब ये आया तो मुझे पता चला कि पिछले 10 सालों में उस गांव में 3 बार आग लगी थी, और हर बार जो भी कोई संस्था है वो कंबल जरूर बांटती है। और ये 3 भाई थे जो इकट्ठे रहते थे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रिलीफ ये 3 अलग अलग हाउस होल्ड बन जाते हैं।
तो ये जो साइकोलॉजी है, ये हमारा जो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट है वो रिलीफ फोकस हो जाता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये 3 चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कि हमने अपने देश ने बहुत खामियाजा भुगता है। IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और इसमें मैंने कबूतर इसलिए लाया है कि पहले जो है ये कम्युनिकेशन का यही माध्यम था, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। और आज की डेट में आप देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे लैंडलाइन, मोबाइल अलग अलग उसके, और इंटरनेट और सारी चीजें। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि इंफॉर्मेशन हमारा जो है वो केवल सूचना देने से बात नहीं बनती है। आप देखते हैं रेडियो पे, टीवी पे न्यूज आती है कि भाई चक्रवात जो है खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, या उसमें जो है अरेबियन सी में आ रहा है, मछुआरों को सलाह दी जाती है पानी में न जाए। सलाह कौन मानता है? सलाह कोई मानता है? वो इंफॉर्मेशन तो दे दी सरकार ने। तो एजुकेशन से तात्पर्य है कि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो। ऑब्जेक्टिविटी वो सब्जेक्टिविटी ना हो। मेरा कहने का मतलब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी शायद कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, काफी महिलाएं भी है। देखिए, दिन में जब आप कुकरी शो देखते हैं उसमें आता है कि जी घी इतने ग्राम ले, फिर आप फला मसाला इतने ग्राम डाले। जब नमक की बात आती है क्या बोलते हैं? स्वाद अनुसार। वो सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि वो एक से दूसरे में, सोनल जी मुस्कुरा रही है वो, क्योंकि आपका स्वाद मेरे से अलग है। और अभी तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नमक स्वाद अनुसार और प्याज औकात अनुसार डाले। तो वो जो है दैट इज द कम्युनिकेशन इन ए सब्जेक्टिव वे। लेकिन ऑब्जेक्टिव वे अगर हम बोलेंगे पानी 20 फुट 30 फुट बढ़ गया तो सबको एक समान समझ आएगा। अगर हम ये बोलेंगे ना पानी कमर तक आ गया तो भी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति अपनी अपनी कमर देखेगा, उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, फुटवर्क का फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीज जरूरी है। और अभी ये जापान में जो एक नया फ्रेमवर्क आया था, उसमें उसके अंडर भी जो है कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 प्रमुख चीजें थी कि एक तो हमारे को डिजास्टर रिस्क को अंडरस्टैंड करना है, चाहे हम किसी भी देश में। फिर क्या है कि स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, कि हम उसको हटा। अब क्या हो रहा है, इस टाइम कोरोना है, लेकिन हम कोरोना के समय में भी हम कैसे काम कर सकते हैं, वही तो हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसी तरह से रिस्क गवर्नेंस। तीसरी चीज, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और चौथा, एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये 4 चीजों पे प्रमुख रूप से उन्होंने फोकस किया था। लेकिन अपने देश के अंदर अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए, मैंने जैसे पहले बताया कि 2001 तक तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर रहा। फिर जब बहुत बड़े बड़े यहाँ पे घटनाएं हुई, चाहे वो भुज का अर्थक्वेक हुआ, चाहे और था, तो ये चली, तो ये ट्रांसफर हुआ होम अफेयर के अंडर। और 23 दिसंबर 2005 को हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ, तब अब्दुल कलाम जी के राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा। लेकिन बहुत सी चीजें आज भी 15 सालों में आज भी बहुत सारी ऐसी है, बहुत सी चीजों में आज भी हम रिएक्शनरी है, प्रोएक्टिव नहीं है। 15 सालों में आज भी नहीं बदल दिए। लेकिन कुछ चीजें जो आए हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर बन गया सेंटर लेवल से लोकल लेवल तक। सेंटर लेवल में क्या है कि बहुत सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एनडीएमए बनने के बाद उसमें एनडीआरएफ आ गया। एनडीआरएफ में अभी भी आप देखेंगे कि कोरोना के समय में अगर हम अफवाह फैलाते हैं तो वो किसके अंडर गवर्न हो रहा है, वो कौन सी धारा लग रही है, वो एनडीआरएफ का एक्ट है। उसके ऊपर अगर कोई झूठ फैलाता है या कुछ इस तरह का वो करता है तो उसके ऊपर वो लगता है। इसी तरह से फिर एनडीए में उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और फिर एसडीएम में जिसका चेयरमैन स्टेट का चीफ मिनिस्टर, डीडीएम में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर, और उसको विलेज लेवल पे ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और नोडल एजेंसी बना दी। जो पहले क्योस रहा कि सब कुछ एग्रीकल्चर के अंडर है, इसमें इसको बांट दिया कि फ्लड जो है सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर जाएगा, और जो साइक्लोन है या अर्थक्वेक है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर जाएगा। ऐसे ऐसी सारी एजेंसीज को उसके लिए जिम्मेदार बनाया गया। और लेसन जो हमने सीखा कि एक तो पहली चीज है बी प्रिपेयर्ड।
क्योंकि बोल के नहीं आएगी आपदा, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, क्रिएट ए कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंशन। ये हमेशा कि अगर हमारा कल्चर, अब कब मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि जापान में हर साल, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, 500-600 भूकंप आते हैं, लेकिन कभी आपने बहुत कम सुना होगा कि बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अपने यहाँ तो हर भूकंप में बहुत नुकसान हो जाता है। अब वो कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस क्या है कि उन्होंने सीख लिया है उसके साथ कैसे रहना, घर कैसे बनाने, फाइबर वाले, प्लास्टिक वाले, ताकि पहले तो गिरे ना, गिर जाए तो वो जान के लिए खतरा ना बने। उस तरह से फिर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टेक होल्डर, ये हमारे लिए लेसन हमने सीखा। और फ्यूचर में ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फिर केंद्र की ओर या दूसरे की ओर देखते रहते हैं। ये जरूरी है, चाहे स्कूल में, कॉलेज में एनएसएस है, एनसीसी है, स्काउट्स एंड गाइड्स है, नेहरू युवा केंद्र है, होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, उनको ट्रेन करना डिजास्टर की दृष्टि से, उनको ट्रेन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको उस चीज के लिए तैयार रखना। और ये ध्यान रखना कि वी हैव टू लिव विद द रिस्क। इसलिए कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जैसे अभी था कि बहुत जगह पे ठिकरी पहरा दिया जा रहा था कि कोई बाहर का व्यक्ति गांव में ना प्रवेश करे। कोरोना के काल में वो गांव वाले खुद कर रहे थे ना, बाई रोटेशन ड्यूटी लगा रहे थे, वो बाहर वाला ना आए। तो वो चीज जो है डिजास्टर के लिए भी कि हमारे को कम्युनिटी बेस्ड, हम कम्युनिटी के लिए अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में हम किस तरह से उसका ध्यान रख सकते हैं, वो जरूरी है। और प्रिपेयर्डनेस में निश्चित रूप से जो मैंने पहले बताया कि जो डिजास्टर से पहले की स्थिति है उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, उस पर ध्यान देना अति आवश्यक होगा। लेकिन एक शिफ्ट हुआ है, पहले हम तब करते थे रिलीफ पे फोकस था, अभी एक लीगल अथॉरिटी बनने के बाद एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म हो गया। क्योंकि एनडीआरएफ दो चीजें हैं, एनडीआरएफ एक्रोनियम सेम है लेकिन दो चीजें हैं, वन इज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म हो गया। एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो बना दी, उनको ट्रेन किया जा रहा है। और सभी जगह भी देख रहे, जो मैं न्यूज का जिक्र किया, वहां एनडीआरएफ के जवान भी लगे हैं जो बोरवेल को निकालने के लिए, और ये स्ट्रक्चर बन गया। एनडीआरएफ का मैंने जिक्र किया, अभी तक इसकी जो कुछ बटालियन है वो कौन कौन से एरियाज है ये आप नेट पे देख सकते हैं। इस तरह से पूरे भारत में आपके राजस्थान और गुजरात के लिए जो 6ठी बटालियन है वो है, ये बड़ौदरा में है, और इसका पूरा एरिया गुजरात, राजस्थान और दमन दीव तक है। इसी तरह से जो मेरे क्षेत्र में वो 7वीं बटालियन है जो भटिंडा में है। अभी एक और बटालियन की बात चल रही है कि उनकी यहाँ पे ज्यादा आपदाएं आती है। तो ये सारे का सारा इस तरह से रोड मैप एक बनाया है, ये एक चेंज हुआ है। लेकिन हमें क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ये मित्रों ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र की अपनी जिम्मेदारी है, स्टेट की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे को लोकल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है या नगर परिषद है, नगर पालिका है, उसकी भी जिम्मेदारी है। और प्राइवेट, चाहे वो एनजीओ काम करने वाले, चाहे मैं आप है, हम ये नहीं कि वही कोई घटना होगी तो हम सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को या निर्मला सीतारमन को फोन करेंगे या अपने स्टेट के मिनिस्टर को फोन करेंगे। कुछ चीजें ये जो सबसे पहले रिएक्ट करने वाला होता है वो लोकल व्यक्ति होता है। तो सबको एकत्रित आना पड़ेगा, तब जाके हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। और क्योंकि समय कम था तो थोड़ा मैं भागना भी पड़ा मुझे, और मुझे लगता है कि लगभग जितना मुझे टाइम दिया था मैंने शायद कमोबेश उसमें इसको पूरा भी किया। और मैं ये समझता हूं कि इसके पश्चात अगर थोड़ा समय होगा, कुछ लोग जो हाथ उठा रहे थे या कोई प्रश्न थे, मैं निश्चित रूप से क्या बोलते हैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इस विषय पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे मैं कुछ देर से काम भी कर रहा हूं, मेरा एक प्रिय विषय भी है। और लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि ये कोई इस पे मैं क्लेम नहीं करता हूं कि आई एम एक्सपर्ट, बिकॉज नन ऑफ अस कैन बी एक्सपर्ट, but still what I understand and what I know I can react to your queries. तो अगर आपका कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से उसको पूछिए। लेकिन ज्यादातर लोग मैंने ये देखा कि इसमें होता है कि वो केवल जनरल वो कर लेते हैं, इस तरह का लिखना शुरू कर देते हैं कि जी ये नंबर दे दीजिए, मेल कर दीजिए, बढ़िया स्पीच दे दी। वो
एक मुझे लगता है बियॉन्ड द हेडलाइन बात होती है। आपका कुछ चीजें होती है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे खुद भी सीखने की कोशिश करता हूँ। जी, थैंक यू। Sir, बताइए। thank you, sir. Thank you very much. I am taking one question because I have received only one question till now, and that is from Dr. Chandrakanta. Uh, and the question is how we can make our cities resilient when our cities are already grown up without keeping in mind the disaster things. Okay. I think you have a very good question because our cities are really grown up. लेकिन आप एक चीज देखेंगे, बहुत सारी चीजें रिसेंट में हुई है। मैं अभी जयपुर मेरे ख्याल पिछले साल गया था, तो वहां पे जो छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़ इस तरह का जो नाम है, उसका मतलब क्या होता था? कहने का मतलब आज तो वहां बिल्कुल बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बन गई, पहले वो एक कोई चौराहा रहा होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं जो किसी भी लेवल पे किया जा सकता है? द फर्स्ट वन इज अवर अवेयरनेस वाला इशू, जो एक बहुत बड़ा है। मुझे लगता है जो मैंने शुरू में बताया, हम केवल भूकंप के बारे में ना सोचें, घटना कोई भी हो सकती है। तो इसलिए अवेयरनेस लेवल जो है हर एक जगह पे, मैं आपको एक व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूं, शायद आप सोचेंगे, मैं कई बार पूछ लेता था, अगर समय होता तो सामने पूछता, कि जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है पहले साल, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मैंने बहुत बार ये सवाल बहुत लोगों से किया, तो कोई बोलता है कि जी वो हिंदी अंग्रेजी सीख ले, इंग्लिश 1 to 10 आ जाए। कोई बोलता है कि जी चलो पढ़ना लिखना है, उसको बैठना आ जाए, उसको टॉयलेट हैबिट आ जाए। इस तरह की बात हम सोचते हैं। लेकिन मित्रों, कभी हमने ये सोचा जो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में या कहीं पे भी आप देखना, हम कभी नहीं सोचते हैं कि उसको पहले साल में, लेकिन मैंने देखा इंग्लैंड में छोटे बच्चे थे, उनको ABCD नहीं बता रहे। ABCD बाद में भी आ जाएगी, लेकिन उनको ये बताया जाता है कि अगर घंटी बजती है, अगर सायरन बजता है, तो आपको सीधे टेबल के नीचे कैसे छुपना है, उससे हमारी जान बचती है। तो एक तो ये चीजें हमारे यहाँ क्या होता है, सायरन बजेगा, बंदा पहले देखेगा कि सायरन बजा क्यों, और उतनी देर में तो शायद वो आ जाएगी। मैं इंग्लैंड गया, मेरे को पहले दिन बताया गया कि हर मंगल और शुक्र को 12 बजे घंटी बजती है, और आपको बाहर दिखा दिया जगह कि आपको लेटेस्ट जो है कम से कम समय में वहां पहुंचना है। तो एक दिमाग में बैठ गया कि मुझे क्या करना है। तो अगर हम पहले से ये दिमाग में रखें कि ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, एक आजकल शब्द SOP किया जाता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है। अब छोटी सी बात है ना, लोग जो है हेलमेट कब लगाते हैं? जब पता चलता है कि पुलिस अगले चौराहे पे चालान कर रही है। अदरवाइज हेलमेट नहीं लगाएंगे। बेल्ट कब लगाते हैं? कि आजकल चालान हो रहे हैं। हम अगर ये दिमाग में रखेंगे कि चालान से बचने के लिए करना है, तो हम शायद वो कल्चर इनकलकेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग अभी मकान बनाने वाले हैं, 10% ज्यादा खर्चा कर लो, थोड़ा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने अभी थोड़ा सा वो पिक्चर दिखाई, सरिया कैसा होना चाहिए, आप थोड़ा सा बेहतर उसकी स्ट्रेंथ दे सकते हो, ये चीजें कर सकते हैं हम। और कुछ एरियाज जो शायद बहुत पुराने होंगे शहर के अंदर, मुझे लगता है कि उसको अगर दोबारा से सरकार की दृष्टि से उसको तोड़ फोड़ करके भी बनाना पड़े किसी लेवल पे, जब हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, वो किया जा सकता है। लेकिन जो एरियाज नए डेवलप हो रहे हैं, उसको कम से कम वो चीजें पहले से हो। हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले हम ऐसे चले जाए फिर वहां जाके सोचेंगे। हमारे को वो ऐसे जाना है डायगनली, वो चीजें जो बाद में करने वाले हैं उसको अभी से करना है। तो वो चीज यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह की चीजें सोचेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है, और हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो तो काफी चीजें बदल सकती है। होगा तभी ये कि इफ एवरीवन टेक इट एज कि भाई हाँ ये हमें करना है। अब आप देखिए सफाई स्वच्छता अभियान चला है, मोदी जी अकेले क्या करेंगे या कोई और व्यक्ति अकेला क्या करेगा जब हम लोग सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं? तो वही चीज इसमें भी है। जी Thank you, sir. Though the questions are coming, but we are running short of time. So I'm just winding up here. Thank you, sir. Thank you very much. And I will mention one thing here, that in spite of having some personal problems, you have accepted our invitation. That shows your dedication towards the academics.
मैं पूरे प्रतिभागियों के सामने इस बात को रख के ये बात बताना चाहता हूं कि सर एक पारिवारिक संकट से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी अकादमिक प्रतिबद्धता के कारण सर ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उसमें से समय निकल कर आए। मेरे पास में कोई शब्द नहीं है सर आपका धन्यवाद करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने ऐसे वक्त में हमें वक्त दिया, और मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं गुजारिश करता हूं और मैं ईश्वर से अपील करता हूं कि वो आपके जो दिवंगत पिताजी हैं उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब तहे दिल से यही चाहते हैं और हम सब इस दुख में आपके साथ शरीक हैं। आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।